Okay, good morning to all of you and welcome back. So good morning messages from Dharya, Karthik, Dhruv, Pathak. Some people are still on the line, joining more. Some people, of course, are not also, as usual. So each weekend passing by, and some of you had made a chart last week as to what we would be targeting this week and or rather last week, and what would be the target for the subsequent, that means the coming week, which is already started. I mean, I hope that enthusiasm is not waned. I mean, and it is still there. And it's a very easy thing to do, as you know. Nothing complicated, nothing day-to-day basis analysis, just an analysis of 10 minutes around at the weekend, which is, I think, a simple thing to do. You should be doing it. And I hope that more and more people start making the chart and also start sending. I think only one or two have sent, two, three have sent last night. So I hope today some more will send. वैसे टारगेटिंग के टाइम तो कई और लोगों ने भी भेजे थे, but after that initial burst of enthusiasm, quite a few times all these formal things start getting a little more difficult. But I hope it is not that, and you are able to manage just 10 minutes around to monitor yourself the weekend. ठीक है ना? So भेज देना आज. Okay, Rohan says कि कल 4 टेस्ट थे इसलिए सेंड नहीं कर पाया. चलो कोई बात नहीं. I mean, that's why I said that those who have not done it can easily do it today also. It's the same thing. You know, doesn't make much of a difference. दिव्यम says कि सैटरडे हमारी इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी खा गया. ये तो हर साल कोई ना कोई छुट्टी तो देखो सैटरडे संडे पड़ेगी. You don't expect all the holidays, so-called holidays, to lie only in the weekdays. Probability does not allow it. That's the problem, isn't it? So anyway, we were discussing about wave optics and more specifically YDSC, isn't it? And let's continue with YDSC. It just in brief, I will tell you is that if let's say this YDSC pattern, which is the double slit. So these are the slits S1 and S2, and let's say at some distance y, this is capital D, the distance of it. Small d is generally mentioned as slit distance, and capital D is the distance between slit and screen. Okay. Divyam has written a long commentary on scientists and their discoveries. Let me read it out if somebody is interested in that. And that is, sir, मैं weekend में पढ़ रहा था कि mostly scientists जिन्होंने major discoveries किए हैं, वो actually कुछ और चीज पर research कर रहे थे, but by mistake कुछ और discover हो जाता था. Well, that is not the only truth. I mean, that's a partial truth. And in any case, a discovery is something for an unknown. It's not a known thing. So, how can you, let's say, know an unknown beforehand, that you can call it as a systematic discovery? So, discovery is like you are sending the searchlight and you suddenly see something at some point. So, the searchlight is not directed at some point. Because if you are directing at some point, that means you already have some kind of inclination that, okay, that is what is the truth. But that is not generally the case. So, like, discoveries are always like that. So, therefore, if you call that as accidental, well, that's a terminology you might be using, but which may not be always the right terminology.
At times it might have happened that it happened unintentionally, uh, or maybe something like they had something else in mind and something else turned out, and that too with a surprise element. Those are some of the instances which are generally quoted, I mean, to justify your statement. But that's not the reality, really, because discovery is, as I said, it's a searchlight, and you don't know what exactly you are going to discover. So, in any case, by its nature itself, then it has to be accidental only, because you don't know what is exactly there. And definite searching, जैसे मैं example एक बताता हूँ, जैसे एक definite searching हो गया कोरोना वैक्सीन. Now here you know what has to be searched. तो यहाँ पे कोई accidental कुछ नहीं होगा. जो भी हो रहा है, they know what has to be done. So like there are existing procedures on which they are trying some chemicals and vaccines and so on. And then they go on for chemical laboratory trials. Then they go for animal trials, then human trials. Then there are phases. I mean, so like this is definite search. But this is not a discovery. Vaccine is not some kind of a discovery. I mean, vaccine itself was a discovery long back, 200-300 years back. But now vaccine is more of a search. That okay, fine, this is the new virus. So we have to find out something which will be destroying that virus or maybe developing immunity based on the virus. So that's a definite search. ये accidental नहीं हो. But बाकी जो बड़े discoveries हुए हैं, maybe some of them were not even known also. So they can be called as discoveries, isn't it? So terminology and way of looking at will be different. Okay, chalo, let's carry on. As I was saying, these are discrete distance, and let's take a point y. If I look at a point y, then the path difference at y, at p rather. So the path difference at p is equal to yd by capital. So that's the path difference. And based on that path difference, based on that path difference, we have bright fringes. So y n bright is equal to n lambda capital D by small d, and y n r is equal to n minus r into lambda d by d. Okay. So that is these are the two things. Right. So y nth bright n lambda d by d, and y nth dark n minus half lambda d by d. So इससे पता चलता है fringe width, which is the gap between subsequent dark or subsequent bright, and that will be lambda capital D by small d. ठीक है. इसके ऊपर हमने उस दिन डिस्कस किया था about fringes coinciding and all, तो उसके लिए LCM वगैरह. So those are the agendas that we have discussed till now. ठीक है ना? Let's proceed from this point now. You have done these already. First thing is on agenda today is about introducing a glass slab. Okay. So today's change is that suppose a very thin glass slab is introduced here. D thickness and mu is suppose the refractive index. Now, due to this, what is going to happen? That's the question. Due to this, what is going to happen? है ना? देखो, अगर कोई भी मीडियम इंट्रोड्यूस करो तो दैट केस क्या होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होता है, वेवलेंथ कम हो जाता है. नाउ देन ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग इज दैट geometrically speaking, this is where path difference is zero. This is the point. Okay. This is where path difference is zero geometrically, but it will no more be equal to zero optically. Now, why not? That's because let's say if there is a medium here, and let's say this is air here, air surrounding, and this is mu. Now, what will happen is that let's say if there's a wave coming here, and there's a wave coming here also, you will see that the wave nicely goes away ahead, no problem. Okay. But what about this?
here you will see that the wavelength has decreased. We know that. So the wavelength decrease हो जाता है, in that case obviously what number of waves will increase. So therefore the number of waves that will happen now will increase. Because air is here, so like this is lambda dash is equal to lambda by mu. So therefore, try to understand effectively what will happen is that the number of waves that will be there in this part of the medium will increase by a factor of mu. So let's say if there are n waves here, if there are suppose n waves, then in that case n dash will be mu times n. Why? Because number of waves will increase by mu. Why? Because wavelength is reduced by a factor of mu. Just an example here, not a very good example. Suppose किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है. Just an example. किसी मीडियम का सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो ऑब्वियसली फिर उसका वेवलेंथ क्या होगा? आधा हो जाएगा, लैम्डा बाय 2, है ना? एयर में सपोज लैम्डा है, तो लैम्डा बाय 2 हो गया. लैम्डा बाय 2 का मतलब क्या हुआ कि वेवलेंथ आधा हो गया. वेवलेंथ अगर आधा हो जाता है तो इन दैट केस इस पोर्शन में जितने वेव्स एयर वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग थे, अब क्योंकि वेवलेंथ आधा हो गया तो नंबर ऑफ वेव्स डबल हो गया, है या नहीं? यानी if you look at carefully, what is going to happen is that effectively what is going to happen is that if this is of path length L, so if this is air path length, अगर L होता है, in that case L dash क्या हो जाएगा? L dash equivalent will be equal to what? Mu times L. Means effectively वो जो path है, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वेव्स के जो वेवलेंथ जो है कम हो गया, तो जितने फैक्टर से कम हुआ उतने फैक्टर से समझ लो कि नंबर ऑफ वेव्स बढ़ गया, यानी इफेक्टिव लेंथ बढ़ गया. तो therefore at the end there is a path difference created equal to what? Mu L minus L is equal to mu minus 1. यानी एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया. अगर मान लो एल लेंथ का एयर मीडियम है और एल लेंथ का कोई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाला मीडियम है, तो जब दोनों वे से वेव्स निकल के आएंगे एट द एंड ऑफ इट, उसके बाद तो फिर से एयर है, फिर तो कोई और डिफरेंस हो नहीं रहा. ये जो बीच का एक डिस्टर्बेंस वाला पार्ट था, उसके चक्कर में क्या हुआ, जो ऊपर वाला मीडियम वाला जो नंबर ऑफ वेव्स थे वो बढ़ गए. तो जिसको हम लोग एज ए ज्योमेट्रिकल पैरामीटर कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? It is equivalent to a path difference created by an amount of mu minus 1. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चक्कर में वेवलेंथ कम हो गया, तो नंबर ऑफ वेव्स बढ़ गया. So that is how we calculate. Now what does it mean? It means that here if you look at path difference is not equal to 0 now. Yes, geometrically it is 0. Because if you calculate the length of the geometrical path from here to here and from here to here, it is the same. So therefore geometrical path difference is 0. But here we are not talking about geometrical path, we are talking about optical path, because that is what is relevant for us. So therefore optical path cannot be 0 here. Now let me ask you, where will the optical path be 0? At some point P here or at some point Q here? So optical path is equal to 0 at some point other than O. If I call as this as let's say C. Now tell me, should it be at P or should it be at Q? Okay, now there are a few questions. I mean, let me take that up. Let me take them up. Akshit says that D will change by a very small factor. We will take object distance of image found by the slab.
नो नो नो, यहाँ पे ना मामला थोड़ा अलग है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज का मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई रेस तो यहाँ पे पहुंचेंगे ना, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए ऑब्जेक्ट इमेज का मतलब नहीं अक्षय। सो लाइक योर अप्रोच ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। सत्यम इज आस्क्ड कि वेवलेंथ वेव ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर क्यों आएंगे? अगर स्लिट पर वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो वो तो कोई एंगल नहीं बनाएंगे। एग्रीड सत्यम, बट एज आई सेड दैट दिस डायग्राम इज अ वेरी डिस्टॉर्टेड डायग्राम। एक्चुअल डायग्राम में मैंने पहले ही बोला था इज दैट दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल। एक्चुअल डायग्राम में दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल। इनको हम लोग बोलते हैं पैराक्सियल, मींस ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्सिस। दे आर नॉट पैरेलल ऑफ कोर्स, बट ऑलमोस्ट पैरेलल। तो मैं समझ गया व्हाट यू आर सेइंग इज दैट कि एक्चुअल में तो ऐसे होने वाला है, यू जाने वाला। तो हमें तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ। द थिंग इज दैट नो, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट बिकॉज़ एज आई सेड द स्लिट विड्थ इज ऑलमोस्ट 0.5 मिलीमीटर इस तरीके से, ये वाला। और जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज इन मीटर्स। सो यू कैन इमेजिन समथिंग इन 0.5 मिलीमीटर, और मान लो यहाँ पे 3 मीटर, तो लाइक 1/3 to 1/3000 ऑलमोस्ट, या 2000 या 4000, उस रेंज में, 1/4000 इस रेंज में। तो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक पैरेलल। सो लाइक लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। ये तो हम ऑलमोस्ट ये मान के चलेंगे कि पैरेलल जा रहा है, दैट वी आर कंसीडरिंग, इतना चलता, ठीक है। सो दैट इज नॉट द मेन इशू, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि ध्रुव हैज आस्क्ड कि एक बार 1 मिनट में पहले बता दो, मैं डिस्कनेक्ट, अच्छा सॉरी। So like what I was discussing was that because of the introduction of glass slab, there will be extra waves created. क्यों? क्योंकि glass slab वाले पोर्शन में वेवलेंथ कम होंगे। तो यानी उतने ही पोर्शन में अगर मैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एक वो डायग्राम बनाता हूँ एयर का, ये एयर है, इसमें कोई ग्लास स्लैब नहीं। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ, सब सेम है, लेकिन इस पोर्शन में और इस पोर्शन में अलग क्या है कि यहाँ पे ज्यादा वेव्स हो जाएंगे, यहाँ पे कम वेव्स होंगे, है नहीं? And therefore, what will happen is that the point where the path difference is zero. When I say path difference, I mean to say optical path difference. Optical path difference here will be non-zero now, है ना? I'd ask कि फिर optical path difference zero कहाँ पे होगा? Will it be somewhere at P or will it be somewhere at Q? Now that is the question. तो उसका आंसर कुछ लोगों ने दिया है। कार्तिक ने दिया P, शिवम Q, रोहन P, Dhruv P. Okay, P is the correct answer. Reason being that, देखो, there has to be some kind of a compensation. There has to be some kind of a compensation. कैसे? अगर मान लो मैं P पे हूँ, तो in that case geometrical path ये छोटा है, ये geometrical path बड़ा है. So this is longer in terms of geometrical path. This is shorter in terms of geometrical path. But this effective path is going to increase. Why? Because that glass slab, in that glass slab part, the number of waves are going to artificially increase. So somewhere there will be a compensation. यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ बढ़ गया बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ वेवलेंथ रिड्यूसिंग इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मीडियम, और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पाथ बढ़ा है, so therefore the compensation will happen somewhere at P. इसको हम लोग पता है कैसे लिखते हैं या बोलते हैं? we say that the central bright fringe has shifted to P. So now the next question is कि कहाँ पे, है ना? So now my next focus is what is the shift of the central bright fringe? Isn't it? Okay, so the question now is what is the shift of the central bright fringe? तो देखो central bright fringe, अच्छा पहली बात तो bright fringe का मतलब होता है जहाँ पे path difference zero है. Please understand, central bright fringe का मतलब central word पे ध्यान मत दो. Central word का मतलब center नहीं है. Central word का मतलब होता है जहाँ पे path difference zero है. वो भी कौन सा path difference? Geometrical नहीं, optical path. So central bright fringe is where the optical
पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 0, वहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज माना जाए। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कहां पे 0 है, देखते हैं ना, at P, somewhere, I don't know where it is. So let's call it as suppose now YC. ठीक है, at P, that is YC from center. क्या होगा ना, extra geometrical path of S to P is equal to YD by D. तो थोड़ी देर पहले लिखा था अभी, और एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ ड्यू टू ग्लास स्लैब विल बी व्हाट, L into mu minus 1 ब्रैकेट में, तो L के जगह क्या होगा, T हो जाएगा, T into mu minus 1। अब मैंने क्या बोला कि सेंटर ब्राइट फ्रिंज कहां पे होगा, जहां पे ये दोनों कंपेंसेट कर जाएंगे। तो कंपेंसेट करने का मतलब क्या हुआ, तो therefore YC into T by D is equal to T into mu minus 1. So therefore YC will be equal to D into T into mu minus 1 by small. That was, so that would be the location of the central bright fringe. I hope that's okay now. Okay, Akshay says कि T into mu minus 1 कैसे है? T into mu minus 1 वही वाला है, L के जगह T कर दिया और कुछ नहीं। देखो what is happening is that, let's take an example. चलो उससे ज्यादा अच्छे के एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज यहाँ पे है 30 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज इक्वल टू 4/3, ठीक है ना, सपोज, और मान लो लैम्डा है इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर एयर का लेता हूं मैं, तो अगर मैं एयर का लेता हूं 30 सेंटीमीटर, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 15 लैम्डा। क्यों, ये मैंने लैम्डा को लिया 2 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर कितने वेव्स आ जाएंगे ना, 15 वेव्स प्लस 15 लैम्डा, हो गया। यानी इस बात को हम बोलेंगे एज इक्वल टू व्हाट, 15 टाइम्स लैम्डा, and that we are calling it as L. So L is equal to in this case 15 लैम्डा। अब इसको, इसका तो ज्योमेट्रिकल तो वही 30 है, तो उसमें कोई वो तो नहीं है, L डैश कितना होगा, now let's talk in terms of lambda। तो इसका जो लैम्डा डैश हो जाएगा, इसका जो लैम्डा डैश हो जाएगा वो होगा लैम्डा बाय म्यू, यानी 2 अपॉन 4/3, that's equal to 3/2 मीटर सेंटीमीटर। So therefore number of waves, ये तो 15 है, तो n डैश कितना आ गया, 30 अपॉन 3/2 है ना, 30 upon 3/2, so that will be equal to what, 20। so therefore it will become equal to what, 20 lambda now, ठीक है। तो 20 waves are rather like 20 waves। now this lambda, this L is equivalent to 15 waves, and this is equivalent to what, this is equal to what, 20 waves।
Now 20 waves can very easily be written as 15 into 4 by 3. That's what. So that's what I'm trying to say. Now this is L. So this is equal to what? 4 by 3L. ये 15 तो L हो गया, 15 को तो मैं L मान रहा हूँ, और ये हो गया 20 waves, तो 15 into 4 by 3 करके है, तो 4 by 3 is what? The refractive index, यानी basically what? Mu times L. यानी अगर ये L होता है तो वो दूसरा वाला क्या हो गया? Mu times L. तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया? Mu L minus L, है ना? Mu L minus L. So that is what? Mu minus 1 into L. So therefore path difference is equal to mu minus 1 into L. That's what the case is. तो इस केस में इधर वाला तो एयर है और उधर वाला मीडियम वाला है, and don't go by this kid टेढ़ा मेढ़ा है, that is considered as almost parallel to the line, because as I said, small d is very small and capital D is very large compared to each other, so therefore we can take that. So that's not a concern, I mean area, it's like that. So therefore we are going to take it as what? Now mu times T as the effective length of this particular section, और ये तो T है ही. So path difference because of this introduction of glass slab is mu minus 1 into ये वाला. और ये वाला ज्योमेट्रिकली बड़ा है, क्यों? क्योंकि पॉइंट वहां पे लिया है, तो ज्योमेट्रिकली कितना बड़ा है ना, ये तो जहां पे दोनों एग्जैक्टली कंपेंसेट कर गया उस पॉइंट को अब हम बोलेंगे सेंट्रल राइट फ्रिंज. सो द फर्स्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इज दैट सेंट्रल राइट फ्रिंज शिफ्ट्स टू अ पॉइंट अबव हियर इन दिस पर्टिकुलर केस. लेकिन अगर यही ग्लास स्लैब तुम यहां से यहां कर दो, तो दैट केस वो फिर पी के जगह क्यू पे आ जाएगा, सेम डिस्टेंस पे आएगा, क्योंकि ग्लास स्लैब तो उतना ही थिकनेस का लिया है, वही ग्लास स्लैब है मान. इट्स अ सिमेट्रिकल थिंग. और कई बार ऐसे भी हो सकता है कि ऊपर और नीचे कंपेंसेट करने के लिए बोल those things also can be done. देखा ना? चलो, so like that's all. Now let me ask a question based on this, and that is, suppose मैं कहता हूं कि एक एक्सपेरिमेंट है, suppose this is 7 into 10 to the power minus 7 centimeter. मीटर ये दिया हुआ, और यहाँ पे जो वेवलेंथ है लाइट का वो है सपोज 6000 angstrom. This is half a millimeter, and this is suppose 4 meter. Question is, locate YC. That is the first question, of course. Locate YC. Second is, find out the fringe width. Third is locate the first bright fringe above central line. ठीक है? That's good enough. 3 क्वेश्चन करो. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देता हूं मैं. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज है 5/4. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/4 है और इसका थिकनेस है 7 × 10⁻⁷ मीटर. ठीक है, मतलब 0.7 माइक्रोन हो गया, 0.7 माइक्रोन. और स्लिट डिस्टेंस दे रखा है 0.5 मिलीमीटर, और ये डिस्टेंस स्क्रीन टू स्लिट डिस्टेंस इज सपोज गिवन एज 4 मीटर. दिस इज स्क्रीन. So go ahead. In the meanwhile, let me Akshit, I hope it's now okay. Akshit, ये समझ में आ गया? ये जो म्यू टाइम्स का कर दिया मैंने. अक्षय बताओ. चलो ठीक, ओके, आई गॉट योर मैसेज. यस, एक काम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब तक मैं जरा इंक भर लेता हूँ. कम होता जा रहा है.
दैट्स द YC। क्योंकि कंपेंसेशन करना है तो कंपेंसेशन कैसे होगा ना, YC into D by D should be equal to T into mu minus 1। YC हो जाएगा dt mu minus 1 by small t, that's the लोकेशन ऑफ सेंटर। चलो कुछ आंसर्स आ चुके हैं, वेरल ने दिए, आर्यन, ध्रुव, रोहन ने दिए हैं 1.5 मिलीमीटर, 2.8 मिलीमीटर, शौर्य तागी has given 1.4 मिलीमीटर, वेरल has also given a similar answer, और कम दिया, अच्छा नहीं शायद मिलीमीटर नहीं किया, चलो ठीक है, सिमिलर आंसर। तो लाइक YC हो गया T by T into mu minus 1, तो आंसर 1 का हो गया D T by D, that is 0.5 millimeter into mu minus 1, so that's 5 by 4 minus 1। और अगर मिलीमीटर में करना है तो इन दैट केस ऑब्वियसली 10 to the 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इज इक्वल टू 10 to the 6 हो गया, 10 to the minus 7 है, तो आपका 4 कैंसिल हो गया, 1.4 मिलीमीटर। देखो फ्रिंज विड्थ इन सच ए केस विल नॉट चेंज, फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो फ्रिंज विड्थ तो पूरा लैम्डा आम्डा उस सबका फिनोमेना, उससे कोई मतलब नहीं इसका, ग्लास स्लैब का ओमेगा विल बी वही लैम्डा डी बाई डी, दैट्स इक्वल टू 6000 डी बाई, ठीक है। तो लाइक 10 to the power 9 48 यानी 4.8 मिलियन। ठीक है ना। और थर्ड क्या हो रहा है, थर्ड है लोकेट द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अबव सेंट्रल लाइन, ठीक है ना। नाउ अबव सेंट्रल लाइन अब क्या होगा, देखो कि यही आंसर आएगा, यही आंसर आ जाएगा 1.4 मिलीमीटर। अबव सेंट्रल लाइन अगर देखें तो ये आ रहा है, पर अगर मान लो बिलो भी पूछा होता है ना, अबव एंड बिलो लेट्स, फिर क्या होता है, एक का आंसर तो 1.4 मिलीमीटर हो गया, और बिलो वाले का आंसर क्या होता है 4. ये हो गया अबव, और ये हो जाएगा 4.8 माइनस 1.4 बिलो, ये दो आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना इज दैट, देखो देयर इज अ टर्मिनोलॉजी डिफरेंस। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो उसका आंसर अलग है, एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अबव सेंट्रल लाइन, तो उसका आंसर अलग है। ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का कैलकुलेशन सेंट्रल ब्राइट से किया जाता है, और अगर पूछा जा रहा है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अबव सेंट्रल लाइन, यानी सेंट्रल लाइन से ऊपर जो ब्राइट फ्रिंज है उसके बारे में बात कर, तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी अलग है, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, एंड दैट इज सपोज इसका हो जाता, सपोज अगर इसका हो जाता, आई होप द क्वेश्चन इज ओवर नाउ। हाँ ठीक है, रॉन ने दे दिया, सौरभ ने भी सही दिया। सपोज आई चेंज द क्वेश्चन स्लाइटली एंड आई मेक इट 11 माइक्रोन, तो क्या चेंज होगा, है ना। तो चेंज ये आ जाएगा 10 to the minus 6 और ये 11, ये चेंज आ गया। और 4 तो चलो वही है, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 to the minus 6 तो यानी 4 खत्म हो गया, 2.2 आ जाएगा। पहली बात तो ये 7 के जगह 11 हो तो 2.2 22 मिलीमीटर आ जाता है ना। ठीक 22 मिलीमीटर। फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं है, क्यों, बिकॉज आई हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग इन द फ्रिंज विड्थ। लैम्डा भी नहीं चेंज किया, कैपिटल डी भी नहीं चेंज किया, स्मॉल डी भी नहीं चेंज किया, इसलिए दूसरे का आंसर तो यही हो जाएगा। तो लाइक ये भी आ गया 22 मिलीमीटर, और
फ्रिंज विड्थ आ गया, फ्रिंज विड्थ तो 4.8 मिलीमीटर। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, थर्ड वन। अब थर्ड का आंसर दो जरा। और थर्ड का आंसर दो, ये वाला। Now answer the third question. $22.2. Right? नहीं समझे नहीं। ध्रुव से क्या हो जाएगा 2.8 मिलीमीटर। लेट मी चेक। नो सॉरी, ध्रुव से 2 मिलीमीटर, खुशी से 2.8 अबव हो जाएगा। देखो आप पता है क्या चक्कर हो गया। अब तो डायग्राम मिटा दो तो आई डोंट थिंक वी नीड दैट एनीमोर। तो अब पता है क्या हो गया कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज अब शिफ्ट हो गया 22 मिलीमीटर। तो लाइक दिस इज 22 मिलीमीटर, 22 मिलीमीटर, दिस 22 और ये 4.8। तो कुछ ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे आएंगे 4.8, 4.8, 4.8, 4.8 इस तरह से आते जाएंगे, है ना। तो अब कैलकुलेशन यहां से होगा। ये अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो चुका है। तो हमें अब देखना पड़ेगा कि कितने ब्राइट फ्रिंजेस इसके अंदर फिट हो जाएंगे। ये तो सेंट्रल हो गया, फिर फर्स्ट आ जाएंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यानी अब हमें देखना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 22/4.8। ये जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगे, ये एक हो गए, ये एक हो गए, ये एक हो गए, ये एक हो गए, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने होंगे, है ना। दैट नंबर विल बिकम इक्वल टू 22/4.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये 5 हो नहीं पाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 4। So therefore 4 into 4.8 will be equal to, ठीक है ना, 19.2। तो यानी ये हो गया 19.2। तो therefore इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, 22 minus 19.2 and that is equal to 2.8 मिलीमीटर। ये अबव वाला हो गया, लेकिन ये तो 4.8 होगा। तो ऊपर अगर 2.8 है तो ऑब्वियसली फिर ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 मिलीमीटर। यानी इसका जो आंसर्स आएंगे, है ना, इसका जो आंसर आएंगे वो है अबव वाला हो जाएगा 2.8 मिलीमीटर और बिलो वाला हो जाएगा 2 मिलीमीटर। आफ्टर फ्रिंज विड्थ इज 4.8। तो ये चीज है, ठीक है ना। ठीक है, अब सही आंसर आ गया। ध्रुव से इसकी अबव वाले में 2 मिलीमीटर, नहीं उल्टा हो गया, उल्टा हो गया बेटे। अबव वाला 2.8 है, ध्रुव तुम्हारा उल्टा हो गया आंसर, बाकी तो सही है। खुशी भुट्टा is also given the same answer 2.8. Shaurya says ki 2 millimeter below, that is also right. Aryan says 2.8, so I'm sure you are talking about the above one. Rohan says ki below wala 2 millimeter hoga. Kushi also says 2 millimeter below hoga. Aryan also says ठीक है, same thing, 2 meter below. Now the calculation is fine. यानी बेसिकली क्या होगा ना कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो गया। तो अच्छा, कई बार देखना इसमें एक और सवाल भी आता है, हाउ मेनी फ्रिंजेस हैव शिफ्टेड। इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है, and that is जो फोर्थ वाला मैं पूछने वाला था, पूछा नहीं बाद में। तो how many fringes have shifted। इसका आंसर सरप्राइजिंगली पता है क्या है, 22/4.8। That's it. That is the answer. यानी 11/2.4, 110/24,
55 by 12. 4 point something, वो तो कैलकुलेट कर सकते हो। और 55 by 12 में ग्रेटेस्ट मेजर नहीं करेंगे, और इसमें फ्रैक्शनल आंसर भी अलाउड है। फ्रिंज मतलब एंटायर रीजन इज अ फ्रिंज, ये पूरा एक फ्रिंज है, पूरा एक फ्रिंज है। तो अगर पार्शियली ऊपर नीचे हुआ है तो दैट इज आल्सो काउंटेड। सो देयरफॉर इफ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी फ्रिंजेस हैव शिफ्टेड, मान लो पहले ग्लास स्लैब नहीं था और मैंने अब ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होगा, वो सेंट्रल राइट फ्रिंज फिर जीरो से कहीं ना कहीं शिफ्ट कर गया, तो पूरा फ्रिंज का पैटर्न ऊपर चला गया। तो देखो देयर इज अ सर्टेन फ्रिंज शिफ्ट। हाउ मेनी फ्रिंजेस हैव शिफ्टेड? द आंसर इज 55 by 12। और ये आंसर रख देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, मतलब इसको इक्वल टू 4 वगैरह नहीं लिखेंगे, है ना। आई मीन इफ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंटीग्रल नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैव शिफ्टेड, तब तो एक अलग बात होगी, बट इफ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी फ्रिंजेस हैव शिफ्टेड, देन दिस इज द आंसर। ठीक है ना। शिवम इज आस्क्ड कि फर्स्ट वाला आंसर चेंज क्यों करा? नहीं, वो इसलिए क्योंकि बीच में जो स्लैब था ना, पहले मैंने 7 दिया था, बाद में मैंने 7 इंटू तो -7 था, बाद में मैंने क्वेश्चन चेंज किया था, ये जो स्लैब था उसको मैंने कर दिया था 11 इंटू 10⁻⁻6, तो मैंने चेंज किया, इसलिए एक नया क्वेश्चन, वी हैव एक्चुअली सॉल्व 2 क्वेश्चंस टिल नाउ, नॉट 1। तो हमने क्लास एक बार लिया था 7 इंटू 10⁻⁻7, फिर हमने पूरा सॉल्व किया, फिर मैंने इसको चेंज किया 11 इंटू 10⁻6 और फिर दोबारा सॉल्व किया। उस बेसिस पे अब ये जो अभी हम लोग बता रहे हैं ये वाले, दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस वन 11 इंटू 10⁻⁻6 मिली सेंटीमीटर का या मीटर का ग्लास स्लैब, उसके बेसिस पे हम लोगों ने सॉल्व किया। तो दिस इज सटल चेंज है, इसलिए मैंने चेंज किया। ओके, योर स्पीकर्स गॉट डिस्कनेक्टेड, हाँ वही, तो हमने बीच में चेंज किया था ग्लास स्लैब का थिकनेस, इसलिए दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे वो जो इंटीग्रल नंबर वाला चीज है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, दैट्स ऑल, और कोई बात। So the analysis was based on the new question. Okay, let's move on now. That was about introduction of glass slab. But you know what? YDSC या YDSC like apparatus या device या setup कई जगह मिलता है, कई जगह मिलता है, और उसमें भी कैलकुलेशंस होते हैं। जैसे मैं एक बताऊंगा, today I will talk about one, and that is called as Lloyd's mirror. Lloyd's mirror में क्या होता है, देखो एक स्क्रीन रखते हैं, चलो ठीक है ना, नथिंग अनयूजुअल, और एक मिरर। And as per the name of the scientist who had done all these things, तो उनके नाम के हिसाब से लॉयड्स मिरर, लॉयड इंटरेस्टिंगली इज डबल है, आई डोंट नो व्हाई। तो जो भी है, ये हो गया सपोज मिरर का एक्सटेंडेड लाइन, मिरर नहीं था, और यहाँ पे मैं कुछ h हाइट के ऊपर एक स्मॉल पॉइंट सोर्स रखता हूँ, ठीक है। सपोज ये जो डिस्टेंस है ये है 20 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये है सपोज 180 सेंटीमीटर। इसका वेवलेंथ है सपोज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। Question is find the location of fourth bright from, let's call this as suppose point O, point.
That's the question. In fact, इसमें एक और question भी है, and that is how many total fringes are formed. This is clear. How many fringes are formed? Fourth bright from and also maybe seventh dark. Okay, these are the two questions. More questions can be asked, but I think let's restrict to two of them. ये 20 सेंटीमीटर, ये 180 सेंटीमीटर, ठीक है. H का वैल्यू दे रखा है 0.5 मिलीमीटर. Now, first of all, you might see ये तो wide AC है ही नहीं, इसमें कोई डबल स्लेट वगैरह. Actually, it may not be wide AC per se look of it, by the direct look of it, but it is wide AC. I will tell you how. देखो एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, देखो ये पॉइंट ले लो, एक रे डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पे और एक रे रिफ्लेक्ट होके जाएंगे यहाँ से. और अगर इसको पीछे करोगे, अगर इस रे को पीछे करोगे, एक्चुअली ये ठीक से हुआ नहीं डायग्राम, जो भी है मतलब आई होप यू आर गेटिंग द डायग्राम. So if this is S, then this is S dash. That's it. तो ये S से डायरेक्ट गया और यहाँ से यहाँ गया, तो इसको तो क्या पता, इसको तो लग रहा है कि जैसे सोर्स यहाँ पे आ गया. S S dash is that two sources है ना, तो है ना. हाँ, आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि एक कैमरा जो है ना बहुत ज्यादा शेक करने लगता है. I don't know what is the solution to that. जब मैं when I'm standing here, it doesn't happen, but when I'm moving around, generally it happens. Actually, camera search करता है. I don't know how to stop that. Maybe there's an option which is like camera still हो गया. I don't know if there is an option like that. चलो, तो like in this case basically क्या होगा, देखो lambda तो वही है 5000. तो अगर मैं fringe width पूछूंगा तो क्या होगा, lambda which is 5000 angstrom into d. अब ये 20 सेंटीमीटर और ये 180 सेंटीमीटर, तो ये 200 सेंटीमीटर, तो ये 2 meters. तो lambda d by d. Now this is 0.5 millimeter and this is also 0.5 millimeter. ये basically 1 millimeter होगा. तो 1 into 10 to the power minus 3. और अगर मिलीमीटर में चाहिए तो ये तो मीटर में आ गया, और अगर मिलीमीटर में चाहिए तो 10 to the power 3 और कर देना, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 1 मिलीमीटर. This is a fringe width. Fringe width तो आ गया 1 मिलीमीटर. अब लोकेशन ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रॉम O पूछा है, और टोटल हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड ये भी पूछा. नाउ गो अहेड. Go ahead, find it out. सत्यम से इसकी टोटल 4 फ्रिंजेस होंगे. ओके, देखो इस पर्टिकुलर केस में एक लिमिटेशन आ जाता है. लिमिटेशन कहां पे आता है ना, एक काम करो, यहाँ पे एक सिमिलर ट्रायंगल बना है, ये 0.5 मिलीमीटर ये हो गया और ये हो गया, तो फ्रिंजेस बस इसी रीजन में आ सकता है ना. तो ये तो 0.5 है,
Now this is 0.5 millimeter और this is 20 सेंटीमीटर, this is 180 सेंटीमीटर, तो ये भी कुछ मिलीमीटर में होगा, तो लेट्स कॉल इट एज h dash, यानी 0.5 by h dash is equal to 20 by 180, यानी h dash is equal to 180 into half by 20. .5 millimeter. ठीक है, so therefore number of fringes is equal to 4.5. तो पहली बात तो सेवेंथ डार्क डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, पहली बात तो सेवेंथ डार्क डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि पहला चीज, चलो ठीक है, मैं काम करूं, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, लाइक सेवेंथ डार्क डज नॉट एग्जिस्ट, फोर्थ ब्राइट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, नाउ दिस इज अ लिटिल बॉर्डरलाइन केस, फोर्थ ब्राइट, ये 4.5 है नंबर ऑफ फ्रिंजेस टोटल अवेलेबल, और हम फोर्थ को ढूंढ रहे हैं, नो दैट्स अ लिटिल बॉर्डरलाइन केस, ये होगा नहीं होगा, सो लाइक वी हैव टू डिसाइड लॉजिकली, जयगोयल से इसका डेसिमल भी लेना है, हाँ डेसिमल भी लेना है, और थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था एक आंसर आया था, वो 55/12 नहीं आंसर आया था, तो मैंने उसको कुछ नहीं किया, मैंने बोला इसको रहने दो ऐसे, और इसको ऐसे मत कर देना कि चलो बाकी हटा दो और 4 निकाल लो, 55/12 4 पॉइंट समथिंग, पॉइंट हटा के 4 कर दो, नहीं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस फ्रैक्शनल भी होता है, क्यों, क्योंकि पूरा फ्रिंज तो एक हो गया, मान लो कुछ पार्ट फ्रिंज का है तो वो भी एक्सक्लूड क्यों करोगे। नाउ सत्यम सेज कि फ्रिंजेस 4.5 क्यों, पूरे तो सिर्फ 4 बनेंगे, नहीं पूरे 4 बनेंगे, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं थोड़ी कर रहा हूँ कि पूरा नहीं बनेगा, पूरा बनेगा, मैं कह रहा हूँ कि पूरा बनेगा और थोड़ा सा पार्ट भी बनेगा, वो भी बनेगा, अब वो एग्जैक्टली क्या बनेगा कैसे बनेगा, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट, है ना, दैट वी आर गोइंग टू कम। तो जो मैं कह रहा था पहली बात तो सेवन डार्क एग्जिस्ट नहीं करेगा, फोर्थ ब्राइट इज नाउ अ क्वेश्चन मार्क, and in this case there is a little bit of a small issue, and that is यहाँ पे अगर तुम nth डार्क और ब्राइट का लोकेशन ढूंढोगे, ठीक है ना, इन दैट केस पता है क्या आएगा, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, y nth ब्राइट का फॉर्मूला पता है क्या आएगा, और y nth डार्क का पता है फॉर्मूला क्या आएगा, नहीं मैं सी तो आपने उल्टा कर दिया, कि पहले तो डार्क में n/2 -1 वगैरह टाइप का कुछ आता था, n - हाफ टाइप का, ये तो आपने ब्राइट में लगा दिया, और यहाँ पे डार्क में वो n टाइम्स लैम्डा डिवाइड आता था, चलो ठीक है, वो तो n - 1 कर दिया काउंटिंग को लेके हमें, एक्चुअली पता है क्या है, इस बार कई सारे डिफरेंसेस है, डिफरेंस नंबर 1 इज दैट देयर इज नो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, दिस टाइम देयर इज नो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना, दिस टाइम देयर इज नो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आउट, अब बोलो क्यों, क्योंकि एक रे जो यहाँ पे जरा और जो ये रिफ्लेक्टेड होके आ रहा है ना, यहाँ पे बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देयर इज फेज चेंज ऑफ पाई, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन इज ऑन अ मिरर, और जब भी रिफ्लेक्शन ऑन ए हार्डर सरफेस होता है तो एक पाई का फेज चेंज होता है, यानी जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा ना, वहां पे ब्राइट फ्रिंज नहीं होगा, वहां पे डार्क फ्रिंज होता है, ये इसका पॉइंट, इसलिए इस बार डार्क और ब्राइट इंटरचेंज है, नॉट ओनली दैट यहाँ पे इस बार डार्क फ्रिंज होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखो पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, 0, पाथ डिफरेंस 0 आ रहा है ना, लेकिन एकदम बारीकी से अगर तुम यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है, इफ आई गो इनटू द डिटेल्स, आई मीन आई होप आई कैन रब दिस ऑफ, अगर बारीकी में इसके डिटेल्स देखोगे तो क्या होगा, देखो अगर इसको मैं बहुत डिटेल करके देखूं तो इन दैट केस पता है क्या होगा, कि एक रे जो डायरेक्ट आएगा वो तो आएगा, जो दूसरा आएगा वो ऑलमोस्ट पैरेलल है,
और यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आए, थोड़ा सा पार्ट देख लो। तो यानी क्या हो रहा है ना, इन दोनों का पाथ लगभग सेम है ज्योमेट्रिकली, लेकिन यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन की वजह से पाई का फेज डिफरेंस, समझ ना। अगर इसको भी बड़ा करके देखोगे तो कुछ ऐसे होगा कि ये ऐसे डायरेक्ट आया और ये ऐसे करके ऐसे आया, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो यहाँ पे एक फेज डिफरेंस ऑफ पाई हो गया, यानी इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर जो पॉइंट आएगा ना, वहां पे आएगा डार्क। तो इसलिए इस बार का पैटर्न डार्क से स्टार्ट हो रहा है। नॉट ओनली दैट, नीचे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि वो तो मिरर के नीचे तो कुछ जाएगा नहीं, यानी इससे पैटर्न एक तरफ है। तो देयर आर क्वाइट अ फ्यू डिफरेंसेस। इस बार प्लस माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि नीचे कोई फ्रिंज ही नहीं है, सब कुछ ऊपर है। दूसरी बात, स्टार्ट डार्क से हो रहा है, समझ रहे हो ये चीज। तो अगर मैं फोर्थ ब्राइट निकालूंगा तो यानी देखो फर्स्ट ब्राइट कहां पे हो रहा है, ओमेगा बाय 2 मींस फ्रिंज विड्थ बाय 2। फोर्थ ब्राइट कहां पे आएगा, तो फोर्थ ब्राइट आएगा तुम्हारा जो है, फर्स्ट ब्राइट आएगा n-1, n-1 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ, 3 माइनस हाफ, 4 माइनस हाफ, यानी 3.5 ओमेगा। तो इस केस में फोर्थ ब्राइट एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ ब्राइट क्या होगा, y फोर्थ ब्राइट हो जाएगा 3.5 इंटू ओमेगा, और ओमेगा तो है 1 मिली, तो इज इक्वल टू 3.5 ये एग्जिस्ट करता है। और सेवेंथ डार्क डज नॉट एग्जिस्ट। हाउ मेनी फ्रिंजेस का आंसर तो पहले आ चुका है, क्योंकि टोटल 4.5 मिलीमीटर का फ्रिंज आ रहा है और एक फ्रिंज हो गया तुम्हारा 1 मिलीमीटर। तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस, द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट विल हैपन इज इक्वल टू 4.5। सत्यमेव दास की इसका डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या स्टडी करने के लिए, क्या स्टडी करने के लिए यूज किया गया? आई मीन आई डोंट हैव रियली गुड आंसर टू योर क्वेश्चन कि क्या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किया गया था। इट इज जस्ट दैट जब YDSC का पता चला साइंटिस्टों को, तो साइंटिस्ट ढूंढने लगे कि और क्या तरीके से हम इंटरफेरेंस के पैटर्न को दिखा सकते, ठीक है ना। वो चीज यानी इफ वी लिस्ट आउट द डिफरेंसेस, है ना, तो द डिफरेंसेस आर देयर, नो डार्क, नो सेंट्रल ब्राइट, differences, fringes only above, ठीक है ना। अच्छा अभी बताओ, इस केस में, इस केस में अगर मिरर यहां तक होता, लास्ट क्वेश्चन, अगर मिरर पूरा यहां तक होता तो देन हाउ मेनी फ्रिंजेस, इसी क्वेश्चन में। ये 0.5 मिलीमीटर है, हाउ मेनी फ्रिंजेस, ये अगर 0.5 होता और मिरर पूरा ही है, तो अब वो सिमिलर ट्रायंगल वाले की जरूरत नहीं। अब बताओ हाउ मेनी फ्रिंजेस आर देयर, ठीक है। इन द मीनवाइल लेट मी टेक द अटेंडेंस। नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर मिरर पूरा एक्सटेंडेड है तो। यहाँ तो वो हो गया ना कि एज ऑफ द मिरर से ही वहीं तक लास्ट पॉइंट था। यहाँ तो हमने यूज किया सिमिलर ट्रायंगल और उससे सॉल्व किया। अब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ।
चलो ठीक है, लेट मी आंसर दैट. Well, there is an answer and that is infinite. मुझे लग रहा था कि infinite आएगा लेकिन infinite होगा. आर्यन साहू has asked कि ये वापस बता दो कि फर्स्ट डार्क क्यों नहीं. अच्छा, फर्स्ट डार्क क्यों आएगा? सत्यम says कि ठीक है. शिवम says infinite, ध्रुव says infinite, कार्तिक says infinite. एक्चुअली इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं आएगा, पर अब टाइम नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बस इसी को फोकस कर देता हूँ. इस दैट कि देखो आर्यन थोड़ा ध्यान से सुनो. इस दैट एक रे देखो डायरेक्ट आएगा और जो जंक्शन पॉइंट है ना, वो जो पॉइंट है ना ये वाला, उसके ठीक एक पॉइंट ऊपर ले लो, बस जस्ट मिनिस्क्यूल ऊपर. तो जो रे डायरेक्ट आएगा और जो उससे ठीक नीचे से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, ज्योमेट्रिकली तो पाथ सेम, लेकिन एक रिफ्लेक्ट होकर आया और एक डायरेक्ट होकर आया. तो therefore there is a path difference of pi. यानी मैं इस पाथ को और इस पाथ को सेम मानता हूँ. क्यों? तो ये पॉइंट एक्चुअली एकदम ठीक बगल में है और ये पॉइंट भी एकदम ठीक बगल में. ये तो मैंने थोड़ा मैग्नीफाई करते 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 बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ. तो therefore ज्योमेट्रिकली दोनों पाथ बराबर है, लेकिन ऑप्टिकली क्या हुआ ना, ये रे सोर्स से डायरेक्ट आया और ये रिफ्लेक्ट होकर आया. तो there is a path difference of pi. यानी दो लाइट्स मिल रहे हैं जिनके ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0 है, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण एक आर्टिफिशियल पाथ डिफरेंस ऑफ पाई क्रिएट हो. तो पाई अगर पाथ डिफरेंस होता है, दैट इज व्हाट लैम्डा बाय 2, व्हिच मींस व्हाट देयर विल बी अ डार्क फ्रिंज. तो वो चीज, इसलिए यहाँ पे जो है डार्क फ्रिंज है. ये वाला पॉइंट डार्क. अब ये वाला पॉइंट यहाँ मत इमेजिन करो, ये वाला पॉइंट बिल्कुल इस कॉर्नर के ठीक ऊपर इमेजिन. दैट इज मीन इसको बड़ा करके दिखाया, फिर और बड़ा करके दिखा रहा हूँ. लाइक आई रियली zoomed into and that's why you are seeing such a gap from here to here. बट रियलिटी में जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कि इस कॉर्नर वाले पॉइंट के ठीक ऊपर क्या होने वाला है ना, उसमें एक डार्क होने वाला है. That's why I'm saying that the starting this time is with a dark fringe and not with the bright fringe. ठीक है ना? That's the case. बाकी नंबर ऑफ फ्रिंजेस के ऊपर डिस्कशन कल कर लेंगे. ठीक है? So we'll continue tomorrow. ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही, फिर we'll continue with this case tomorrow. ठीक है? चलो आज के लिए. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you and have a good day.